Hello everyone, let's start with classification of elements and periodicity in properties. The periodic table is arguably the most important concept in chemistry, both in principle and in practice. It is the everyday support for students, it suggests new avenues for research to professionals, and it provides a succinct organization of the whole of chemistry. It is a remarkable demonstration of the fact that the chemical elements are not a random cluster of entities but instead display trends and lie together in families. An awareness of the periodic table is essential to anyone who wishes to disentangle the world and see how it is built up from the fundamental building blocks of the chemistry, the chemical elements. So, in this NCRT series, we will be doing each and every point from NCRT, each and every point, each and every table, each and every trend, each and every question we will be solving here. So, this will be covering not only the concepts, not only the NCRT lines, but even graphs and each and every point, and even the possibility and the types of questions possible, and along with, if possible, do PYQs, previous year questions. So let's see. In this unit we will be studying the historical development of the periodic table as it stands today and the modern periodic law. We will also learn how the periodic classification follows a logical consequence of the electronic configuration of atoms. Finally, we shall examine some of the periodic trends in the physical chemical properties of the element. Now, why do we need to classify elements? We need we know we know by now that the elements are the basic units of all types of matter. In 1800, only 31 elements were known. By 1865, the number of identified elements had more than doubled to 63. By 1863, the number of identified elements had more than doubled to 63. At present, 114 elements are known. Of them, the recently discovered elements are man-made. Efforts to synthesize new elements are continuing. Efforts to synthesize the new elements are continuing. With such a large number of elements, it is very difficult to study individually the chemistry of all these elements and their innumerable compounds individually. To ease out this problem, scientists searched for a scientific way to organize their knowledge to classify the elements. Now only that it would rationalize known chemical facts about elements, but even predict new ones for undertaking further study. Genesis of periodic classification. Classifications of elements into groups and development of periodic law. Periodic table are the consequences of systemizing the knowledge gained by a number of scientists through their observations. So we need to classify the tables. Like in biology, we have in biology and botany we have classified plants, we have classified animals. So then it became easier to study and remember their common characteristics. But similarly, for understanding the elements that are present in the nature, to remember chemical and physical properties, we need to classify them, and not only the known properties but also so there were number of scientists who were trying to understand and group the elements. So the German chemist John Dubonnier in early 1800s was the first to consider the idea of trends among properties of elements. By 1829, he noted a similarity among the physical and chemical properties of several groups of 3 elements that are called triads. So he noted a similarity among the physical and chemical properties. So he observed a similarity among the physical and chemical properties of several groups of 3 elements, that is called triads. In each case, he noticed that the middle element of each of the triads has an atomic weight about halfway between the atomic weights of the other 2. Also, the properties of the middle element were in between those of the other 2 members. Since Dubonnier relationship referred to as law of triads,
सो यहाँ पे क्या हुआ कि ही हैज़ टेकन 3 एलिमेंट्स, एक 3 एलिमेंट्स का ग्रुप उन्होंने उठाया। 3 एलिमेंट्स का ग्रुप उठा के क्या किया, पहले दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक वेट का एवरेज निकाला, तो मिडिल वाले एलिमेंट का वेट आया। सिंस डोबनियर रिलेशनशिप रिफर टू एज द लॉ ऑफ ट्रायड्स, सिंस 3 एलिमेंट्स लेके लाइक ऐसा ट्रेंड चल रहा था, तो उसको बोलते लॉ ऑफ ट्रायड्स। तो जैसे कि एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ट्रायड कंसिडर करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सो लिथियम का एटॉमिक वेट 7 और पोटेशियम का 39। 7 + 39 कितना होता, 46। 46 by 2 दैट इज़ 23। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है, 23, एंड इट इज़ करेक्ट। सिमिलरली कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। सो कैल्शियम 40, बेरियम 137, तो स्ट्रॉन्शियम का कितना आया, 40 + 137 by 2 that is 88. Similarly, chlorine, bromine, iodine. Chlorine 35.5, iodine 127. 35.5 plus 127 by 2 will get 80. So this law of triads seemed to work only for a few elements. It was dismissed as coincidence. So ये लॉ को डिसमिस कर दिया गया कि एक कोइंसिडेंस है कि 3-4 एलिमेंट्स के ट्रायड्स का ऐसे हो रहा है, लेकिन बाकी के एलिमेंट्स का नहीं होगा. So it was dismissed. It was not accepted by the scientist. The next reported attempt to classify elements was made by the French geologist. He was a geologist. His name is A.E.B.D. Cancotois. In 1862, he arranged the known elements in order of increasing atomic weights and made a cylindrical table of elements to display the periodic recurrence of properties. So he arranged the known elements in the order of increasing atomic weight and made a cylindrical table of elements to display the periodic recurrence of properties. So what he took, Dobania started that atomic weight trend. So this trend, Cancotois, he took atomic weights and he arranged the atomic weights in the increasing order. So while he was arranging the atomic weight into increasing order, he got a cylindrical table, so to display the periodic recurrence of properties. So this cylindrical table, what he made to display the periodic recurrence of properties. This also did not attract much attention. Then what happened, did not attract much attention, so this was also dismissed. The English chemist John Alexander Newlands, he is English chemist, and in 1865 he propounded the law of octaves. So this law is very famous since it is related to the music. He arranged the elements in increasing order of the atomic weight and noted that every 8th element has properties similar to the first element. 8th element की property first element के similar है ना. तो इस तरह से उन्होंने अरेंज करना शुरू किया. द रिलेशनशिप वाज जस्ट लाइक एवरी 8th नोट दैट रिजेंबल द फर्स्ट इन ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक. जैसे इफ़ यू सिंग द नोट स रे गा मा प द नी सा, सो द 8th element had properties similar to the first element. सा रे गा मा प द नी सा. So 8th element is similar to first element. The relationship was just like every 8th note that resembles the first in octaves for music. So Newland's law of octaves seemed to be true only for elements up to calcium. Although his idea was not widely accepted at the time, he for his work was later awarded Davy Medal in 1887 by Royal Society of London. But this was only up to calcium. The problem was this: the periodic law as we know it today owes its development to the Russian chemist Dmitry Mendeleev. 1834 to 1907, and the German chemist Luther Meyer. Working independently, both the chemists in 1869 proposed that on arranging elements in the increasing order of their atomic weights,
Similarities appear in physical and chemical properties at regular intervals. अब डोबेनियन पहले जो डोबेनियर थे उन्होंने क्या किया, एटॉमिक वेट का ट्रायड्स का ट्रेंड निकाला, लेकिन वो ट्रेंड को एक कोइंसिडेंस समझ के डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद जितने भी साइंटिस्ट आए, जैसे ऑक्टेव आया, उसने क्या निकाल दिया एक नया, कि हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को रिजेंबल कर रहा है। तो ये रिजेंबल की प्रॉपर्टी लेके मेंडलीव और लुथरमेयर ने क्या बना दिया कि अगर आप एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, देन यू विल गेट सिमिलैरिटीज़ इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एट रेगुलर इंटरवल्स। अब रेगुलर इंटरवल्स का ट्रेंड शुरू हो गया। लुथरमेयर प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, melting point, boiling point against atomic weight and obtained a periodically repeated pattern. तो जब उन्होंने एक ग्राफ डाला तो उसमें उनको एक रिपीटेड पैटर्न मिला, and obtained a periodically repeated pattern. Unlike Newland's, Luthermeyer observed a change in length of the repeating pattern. By 1869, Luthermeyer had developed a table of the elements that closely resembled the modern periodic table. However, his work was not published until after the work of Dmitry Mendeleev, the scientist who is generally credited with development of modern periodic table. So, मेंडलीव को ज़्यादा वो किया जाता है, लेकिन मेंडलीव की डिस्कवरी के बाद इनके पेपर्स भी पब्लिश हुए। फिर पता चला कि इन्होंने भी सिमिलर वर्क किया था जिससे मेंडलीव ने किया था, इनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। सो जैसे अगर हम न्यूलैंड ऑक्टेव्स का टेबल देखें तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का टेबल है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, लिथियम के प्रॉपर्टीज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सो एवरी 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को रिजेंबल कर रहा है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन। सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को रिजेंबल कर रहा है। उसके बाद यही इंटरवल्स पे एक ग्राफ डाला गया। किसने डाला था? लुथरमेयर। फिर उनको ना एक रेगुलर ट्रेंड में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होते हुए दिखाई दी, लेकिन जो रिपीटिंग पैटर्न का लेंथ था वो अलग था। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन मेंडलीव को हम ज़्यादा जानते हैं। और मेंडलीव के जब मेंडलीव का क्रेडिट हो गया कि इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसके बाद लुथरमेयर का पेपर पब्लिश हुआ और फिर उनको भी नाम मिला। While Dubinier initiated the study of periodic relationship, it was Mendeleev who was responsible for publishing the periodic law for the first time. So जैसे कि देखा जाए तो जो डुबेनियर हैं उन्होंने इनिशिएट किया द स्टडी ऑफ पीरियोडिक रिलेशनशिप। While Dubinier initiated the study of periodic relationship, it was Mendeleev who was responsible for publishing the periodic law for the first time. Dubinier ने periodic relationship निकालने की शुरू की, लेकिन it was Mendeleev who was responsible for publishing the periodic law for the first time. So Mendeleev वो थे जिन्होंने पहली बार periodic law निकाला। So periodic law क्या था? Mendeleev के द्वारा दिया हुआ the properties of the elements are a periodic function of the atomic weights. Atomic weights के periodic function है, लेकिन हम modern periodic law की बात करें तो electronic function के periodic function, electronic configuration के periodic function है। मेंडलीव के हिसाब से atomic weight periodic function है ना। मेंडलीव arranged elements in horizontal rows and vertical columns. मेंडलीव की खास बात था कि उन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज बनाए और वर्टिकल कॉलम्स। तो जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं और रोज होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। कैसे याद रखेंगे? सीवी मतलब कॉलम, सी फॉर कॉलम, वी फॉर वर्टिकल। तो कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल होते हैं। कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल होते हैं। कॉलम्स और वर्टिकल। तो सीवी एंड हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल में रोज आते हैं, ठीक है। हॉरी
वर्टिकल में हम आर का प्रोनाउंसिएशन उतना नहीं करते, हॉरिजॉन्टल में आर का प्रोनाउंसिएशन होता है, हॉरिजॉन्टल में रोज होता है और वर्टिकल कॉलम्स होता है. Of a table in order of their increasing atomic weights in such a way that the elements with similar properties occupy the same vertical column or group. तो इन्होंने इस तरह से अरेंज किया कि जितने भी एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे हैं उनको एक वर्टिकल कॉलम में रख दिया. वो वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप से जानते हैं, ग्रुप्स. Mendeleev's system of classifying elements was more elaborate than Luther Meyer. He fully recognized the significance of periodicity and used broader range of physical and chemical properties to classify the elements. मेंडलीव ने इतना पीरियोडिक टेबल पर काम किया था कि उन्हें अगर किसी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं भी पता है तो वो बता सकते हैं विदाउट एक्सपेरिमेंट. सो ही फुली रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिसिटी से इतना फ़ायदा है and used broader range of physical and chemical properties to classify elements. In particularly, Mendeleev relied on the similarities in the empirical formulas and properties of the compounds formed by the elements. तो इन्होंने empirical formula पे बहुत ध्यान दिया था कि अगर empirical formula similar हैं, properties of compounds भी similar होंगे formed by the elements. He realized that the some of the elements did not fit in with his scheme of classification in the order of atomic weight was strictly followed. अगर वो एटॉमिक वेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली, तो कभी कभार क्या होता है कि जो एटॉमिक एटम्स हैं वो कभी ऊपर कभी सही से नहीं बैठ रहे, सो ही प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रहे, ऐसे ग्रुप में चले जा रहे हैं. सो ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स, थिंकिंग दैट द एटॉमिक मेजरमेंट माइट बी इनकरेक्ट एंड प्लेस द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर. सो जितने भी एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के थे उनको एक ग्रुप में रख दिया. फॉर एग्जांपल आयोडीन विद एटॉमिक वेट, आयोडीन विद लोअर एटॉमिक वेट. आयोडीन जो है उसका एटॉमिक वेट कम है, आयोडीन का वेट क्या है, एटॉमिक वेट कम है देन दैट ऑफ टेलुरियम. जो आयोडीन है उसका एटॉमिक वेट टेलुरियम से कम है. अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का चार्ट ऑब्जर्व करें तो उसमें आप देखोगे जो टेलुरियम है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, 6A ग्रुप, वराज आयोडीन 7A. लेकिन एटॉमिक वेट आयोडीन का कम है. तो अगर एटॉमिक वेट के हिसाब से अगर अरेंज करें तो आयोडीन टेलुरियम से पहले आएगा. इसका मतलब आयोडीन का ग्रुप कौन सा होना चाहिए, ऑक्सीजन फैमिली होना चाहिए, लेकिन वो है हैलोजन फैमिली. तो उन्होंने सोचा कि शायद एटॉमिक वेट इनकरेक्ट कैलकुलेट हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है. उन्होंने आयोडीन को हैलोजन के ग्रुप में ही रखा और टेलुरियम को ऑक्सीजन ग्रुप में रखा. वॉज प्लेस्ड इन ग्रुप 7 आफ्टर द फ्लोरिन, क्लोरीन, ब्रोमीन बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटीज एंड प्रॉपर्टीज़. तो ना प्रॉपर्टीज़ को सिमिलैरिटीज़ देते हुए आयोडीन और टेलुरियम को स्ट्रिक्टली एटॉमिक वेट का ट्रेंड फॉलो नहीं किया बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ प्रॉपर्टीज. एट द सेम टाइम कीपिंग his primary aim of arranging the elements of similar properties in the same group, he proposed that some of the elements were still undiscovered and therefore left several gaps in the table. So क्या हुआ कि एट द सेम टाइम कीपिंग हिज प्राइमरी एम ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप, सेम प्रॉपर्टी मतलब सेम ग्रुप में होना चाहिए. ही प्रपोज दैट सम ऑफ द एलिमेंट्स वर स्टिल अनडिस्कवर्ड एंड देयरफॉर लेफ्ट सेवरल गैप्स इन द टेबल. For example, both gallium and germanium were unknown at the time of Mendeleev published his periodic table. Germanium और gallium discover नहीं हुए थे. Germanium and gallium did not were unknown at that time. He left the gap under aluminium under a gap and a gap under silicon and called these elements इका aluminium and इका silicon. देखो aluminium के बाद क्या आता है, गैलियम आता है, सिलिकॉन के बाद क्या आता है, जर्मेनियम आता है. So Mendeleev predicted not only the existence of gallium and germanium but also described some of the general physical properties. These elements were discovered later. Some of the properties predicted by Mendeleev for these elements and those found experimentally were listed. The boldness of Mendeleev's quantitative predictions and their eventual success made him and his periodic table famous. Mendeleev's periodic table, published in 1905, is shown. You can see on the screen. This is the periodic table.
given by Mendeleev. So you can see that he did not follow the order of trend of atomic weight, thinking that there might be some error, there might be some calculation mistakes. So he, based on the similarities in the properties, he kept it with chlorine, fluorine, halogen family, tellurium in oxygen family. And he similarly, following the trend of similarity, he took he kept some space for Eka aluminum and Eka silicon, which was gallium and germanium, below aluminum and below silicon. So if you see the periodic table, where is aluminum, so instead of Eka aluminum they have kept here gallium, below aluminum is gallium, and below silicon is germanium. So here you can see, here you can see, so you can check out here to change the color. Okay, I will take this color only. So you can check here, this is gallium, aluminium के नीचे क्या है गैलियम, and silicon के नीचे क्या है germanium. So these there was some spaces, but now we recognize that it is gallium and silicon, and he also described some of the physical properties. So now let's just see further. The boldness of Mendeleev's quantitative predictions, बहुत ही ज़्यादा predict कर रहे थे similarities पे. He worked so much that he was able to predict the properties. He was a versatile genius guy, and he worked on many problems connected with Russia's natural resources. He invented an accurate barometer. He resigned from the professorship. He was appointed as director of the Bureau of Weights and Measures. So he is a great scientist. So modern periodic law and the present form of the periodic table. So we must bear in mind that when Mendeleev developed his periodic table, chemists knew nothing about internal structure of atom. However, the beginning of the 20th century witnessed profound development in theories about subatomic particles. In 1913, the English physicist Henry Moseley observed regularities in the characteristic X-ray spectra of the elements. A plot of root V, where mu is frequency of X-rays emitted. So plot of mu V, root mu, against atomic number Z, gave a straight line and not the plot root mu was atomic mass. He thereby showed that the atomic number is a more fundamental property of an element than its atomic weight. Mendeleev's periodic law was therefore accordingly modified. This is known as modern periodic law, which can be stated as the physical and chemical properties of the elements and periodic functions are the periodic functions of the atomic numbers. The periodic law revealed important analogies among the 94 naturally occurring elements. Neptunium, plutonium, like actinium and protactinium, are also found in pitchblende and ore of uranium. So अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? Periodic law reveal important analogies among the 94 naturally occurring elements. सो यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं बनेगा, ये बन सकता है कि नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, लाइक एक्टिनियम एंड प्रोटेक्टिनियम, neptunium and plutonium, like actinium and protactinium, are also found in pitchblende and ore of uranium. So an ore of uranium क्या है? An ore of uranium क्या है? pitchblende.
तो ना ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, ये कहाँ से कौन सी लाइन से उठा के लाया। पिच ब्लेंड, अब तुम सोचो कि पिच ब्लेंड तो पी ब्लॉक को बिलोंग करना चाहिए, किस कहाँ कहाँ सोचने चल जाते हो, लेकिन ऐसे पॉइंट्स इधर निकलते हैं। सो इट्स वेरी सैड, राइट। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ओके पिच ब्लेंड में पिच ब्लेंड इज़ एन ओर ऑफ, पता ही नहीं, यूरेनियम होना चाहिए, यूरेनियम रेडियो एक्टिव, उसमें आपको नेपटूनियम और प्लूटोनियम के साथ साथ एक्टिनियम और प्रोटेक्टिनियम भी मिलता है, एक्टिनियम और प्रोटेक्टिनियम भी मिलता है, एक्टिनियम एंड प्रोटेक्टिनियम भी मिलता है। तो पिच ब्लेंड इज़ एन ओर ऑफ। सो गाइस, ये पॉइंट को ध्यान रखना, like you have to be very careful with this point, that pitch blend is an ore of uranium. It is having neptunium, plutonium, actinium and protactinium. You can see here that pitch blend is an ore of uranium. It has neptunium, plutonium, actinium and protactinium. तो 4 है। इसका ट्रिक भी बनाएंगे हम। तो इसका ट्रिक क्या बनेगा, इसका ट्रिक बनेगा यूरेनियम पिच ब्लेंड, यूरेनियम पिच ब्लेंड, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, एक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम। तो जिसमें पी है वो सब पिच ब्लेंड में आएंगे। पी सब पिच, नेपटूनियम में पी, प्लूटोनियम में पी, प्रोटेक्टिनियम में पी और एक्टिनियम में का जाएगा। ये यूरेनियम का ओर है। पिच ब्लेंड इज द ओर ऑफ यूरेनियम, कैसे याद रखेंगे, पिच। तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही वो है, तो उससे पीछे हटो। तो यूरेनियम से आपको पीछे हटना है क्योंकि ये रेडिएशंस देता है, रेडिएशंस बहुत हार्मफुल होते हैं, कैन कॉज म्यूटेशंस, कैन कॉज कैंसर, कैन डेवलप वेरियस प्रॉब्लम्स। सो पिच ब्लेंड, पीछे हटो, किससे, यूरेनियम से, बिकॉज यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो आपको हार्म पहुंचा सकता है। तो पिच ब्लेंड इज़ एन ओर ऑफ यूरेनियम। कैसे बोलोगे, यूरेनियम के ओर से पीछे हटो, पिच ब्लेंड। सो जिसमें पी है वो सारे उसमें आते हैं, नेपटूनियम, प्लूटोनियम, प्रोटेक्टिनियम और एक एक्टिनियम याद रखना है। प्रोटेक्टिनियम याद है तो एक्टिनियम भी। 10 बार आँख बंद करके बोलो, पिच ब्लेंड is the ore of uranium, pitch blende is the ore of uranium, pitch blende is the ore of uranium, pitch blende is the ore of uranium. Consists of, pitch blende consists of neptunium, plutonium, protactinium, actinium, neptunium, plutonium, protactinium, actinium, neptunium, plutonium, protactinium, actinium, neptunium, plutonium, protactinium and actinium. तो ये ऐसे याद करना है। सो पीछे हटो, किससे पीछे हटना है आपको, यूरेनियम से पीछे हटना है। और ऑफ यूरेनियम इज पिच ब्लेंड। तो किस क्या क्या होता है, प्लूटोनियम, नेपट्यूनियम, प्रोटेक्टिनियम एंड एक्टिनियम। सो इस तरह से आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, पीछे हटना है आपको। यूरेनियम बहुत ही हार्मफुल है ना, तो इससे पीछे हटना है। ये रेडियो एक्टिव हथियार में यूज़ किया जाता है, रेडियो एक्टिव वेपन्स में यूज़ करता है इसको। It stimulated renewed interest in inorganic chemistry and has carried into present and the creation of artificially produced short-lived elements. So you may recall that the atomic number रिकॉर्ड तो हो रहा है ना। yes, so कई बार ऐसा हुआ है कि मैं रिकॉर्ड करते करते कभी वॉइस चली गई तो मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। सो इट वाज डिफ़िकल्ट, बार बार रिकॉर्ड करना कहाँ होता है। सो पिच ब्लेंड क्या होता है, पिच ब्लेंड आपको यूरेनियम से पीछे हटना है। क्यों पीछे हटना है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, आपको हार्म पहुँचा सकता है। उसमें प्लूटोनियम, नेपट्यूनियम, प्रोटेक्टिनियम और एक्टिनियम मिलते हैं। तो कौन सा, एक्टिनॉइड्स मिलते हैं, एक्टिनॉइड्स, क्योंकि ये बहुत एक्टिव होते हैं, तो यूरेनियम के साथ ही रहेंगे एक्टिव लोग। सो यू मे रिकॉल दैट द atomic number is equal to the nuclear charge.
सो जो पिच ब्लेंड है वो यूरेनियम का है, आपको उससे पीछे हटना है। उसमें क्या क्या है, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, प्रोटेक्टिनियम एंड एक्टिनियम। तो एक्टिव मेटल्स ही रहेंगे, जैसे एक्टिनियम नाम में ही है, तो यूरेनियम के साथ रहेंगे। सो यू मे रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर, तो इससे क्या हुआ, इट स्टिमुलेटेड renewed interest in inorganic chemistry and had carried to the present with the creation of artificially produced short-lived elements. So you may recall that the atomic number is equal to the nuclear charge, that is number of protons or the number of electrons in a neutral atom. Neutral atom में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, बचपन से जानते हैं आप। It is then easy to visualize the significance of quantum numbers and the electronic configuration and periodicity of elements. In fact, it is now recognized that the periodic law is essentially the consequence of the periodic variation in electronic configurations. अब एनसीईआरटी ने फाइनली एक बात उगली है कि तब से बोल नहीं पाई थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट में बोला कि it is now recognized that periodic law is essentially the consequence of periodic variation in electronic configurations. कैसे पता चला, क्योंकि it is easy to visualize the significance of quantum numbers and electronic configurations and periodicity of elements. Electronic configuration important है, right? Which indeed determined the physical and chemical properties of elements and their compounds. Numerous forms of periodic table have been devised फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप देखें तो बहुत सारे पीरियोडिक टेबल, जैसे डोबनियन ने अपना एक निकाला, उसके बाद टॉर्टोइस नाम नहीं है उसका, मैं इसको टॉर्टोइस बोल दी क्योंकि इसका नाम ही ऐसा नाम कौन रखता है, कैनकोटॉइस। फिर न्यूलैंड ने निकाला, उसके बाद मेंडलीव और लुथरमेयर, उसके बाद फाइनली मोस्टली ने बताया कि एटॉमिक नंबर है, वेट नहीं है। उसके बाद हमें पता चला कि उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस पता चली, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी इसके ऊपर बेस्ड बन गई, एंड देन हमें पता चला कि ये पीरियोडिक फंक्शंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होते हैं। सो न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सम फॉर्म्स एम्फसाइज केमिकल रिएक्शंस एंड बैलेंस। सो पीरियोडिक टेबल हैव बीन डिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसको चेंज करते रहते हैं। सम फॉर्म्स एम्फसाइज केमिकल रिएक्शंस एंड बैलेंस whereas others stress on electronic configuration of elements. So a modern version, so-called long form of periodic table of the elements, is the most convenient and widely used. The horizontal rows, which Mendeleev called series, are called periods. Horizontal rows को हम क्या बोलते हैं, horizontal rows को periods बोलेंगे, एंड जो वर्टिकल कॉलम्स उसको ग्रुप्स बोलेंगे। सो एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर outer electronic configuration in their atoms are arranged in vertical columns. मैंने बताया कि वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम्स, CV। जैसे आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको CV देना पड़ता है, राइट? तो CV मतलब वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल में R हम प्रोनाउंस कर रहे हैं अच्छे से, तो ये रोज होते हैं। सो रिफर टू एज ग्रुप्स और फैमिलीज़, ग्रुप भी बोलते हैं, फैमिलीज, और पीरियड्स को सीरीज़ भी बोलते हैं, राइट? पेंडलीफ सीरीज़ बोलते थे पीरियड्स को, क्योंकि एक स्ट्रेट टाइम में। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म देख लेना कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। सब IUPAC कोई IUPAC बोलता है, एक्चुअली इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इनकी केमिस्ट्री तुम्हारे पानी से भी प्योर है। द ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18, रिप्लेसिंग द ओल्डर नोटेशन 1A to 7A, 8A, 1B, 8B, 7B, 0B, क्या की। तो इसको अब हम कैसे कर दिया, IUPAC ने कैसे कर दिया, 1 to 18 नंबर दे दिया। सो दे आर ऑल टुगेदर 7 पीरियड्स हैं हमारे पास, 7 पीरियड्स हैं। द पीरियड नंबर करस्पॉन्ड्स टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। सो पीरियड नंबर ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना कि जो पीरियड नंबर है, जो आपका पीरियड नंबर होता है, इज ए करस्पॉन्ड्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो पीरियड नंबर किसको करस्पॉन्ड करता है, पीरियड नंबर करस्पॉन्ड्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पीरियड प्रिंसिपल, राइट? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। जैसे कि मैं 1s हाइड्रोजन की बात करती हूँ, तो जैसे फर्स्ट पीरियड क्या है, हाइड्रोजन का है,
सो 1s1 तो 1 हुआ, राइट. द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स. देखिए हम ये क्वेश्चंस करने के बाद हम बहुत से इम्पोर्टेंट आई थिंक हम बहुत इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ दिस NCERT चैप्टर्स. ओके, ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियड. द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स. जो पहला पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम. द सब्सिक्वेंट पीरियड्स कंसिस्ट ऑफ, उसके बाद 8, 8, 18, 18, 32. तो कैसा है फर्स्ट पीरियड, कौन सा है शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है फर्स्ट पीरियड. उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 2, हाइड्रोजन और हीलियम. बाकी का कौन सा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन. तो उसमें कितने हैं, 8. उसके बाद सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन. सो इसमें भी 8 हुए. सिमिलरली पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. कितने हो गए अब तक हुए 12, राइट. कहाँ तक, जिंक तक पहुँचे थे. अब गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन. कितने हुए, काउंट करो, 15, 16, 17, 18. तो 18 इसमें, फिर 18 6 में, फिर 18 7. मतलब ऐसे ही आपको पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स हैं. लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड फर्स्ट पीरियड है, सबसे लॉन्गेस्ट देखते हैं कौन सा है. द 7th पीरियड इज़ इनकम्प्लीट and like the 6th period would have a theoretical maximum on the basis of quantum numbers. तो 6th period में maximum माना जाता है. 7th period को incomplete मानते हैं ये बूढ़े लोग, क्योंकि इनको पता नहीं कि डिस्कवर हो गया है. ठीक है, फिर भी 6th period theoretically maximum on the basis of quantum numbers. तो देखा जाए तो 6th period मैक्सिमम है और सेकेंड पीरियड में फर्स्ट पीरियड में मिनिमम है, जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम. शॉर्टेस्ट पीरियड फर्स्ट पीरियड. तो आप कहीं लिख लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जो शॉर्टेस्ट पीरियड है वो फर्स्ट पीरियड है. शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, फर्स्ट पीरियड 1, जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स पाए जाते हैं. कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 2 एलिमेंट्स, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड हीलियम. अब थियोरेटिकली अगर हम लॉन्गेस्ट पीरियड लें तो उसको हम 6th पीरियड बोलेंगे. 6th पीरियड बोलेंगे क्योंकि उसमें मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर उसमें मैक्सिमम आ सकते हैं, ऐसा लगता है ना. उसमें ना कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, 32 एलिमेंट्स. 32 एलिमेंट्स किसमें है, 6th पीरियड, और इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड. 6th पीरियड को लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं. उसमें 32 एलिमेंट्स इन दिस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. या फिर आप अपनी NCERT खोल के बैठे उसमें अंडरलाइन करें ये हाईलाइटेड पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ. सो जो 6th पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट्स हैं. इन दिस फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल 14 एलिमेंट्स ऑफ बोथ 6th and 17th पीरियड्स क्या है, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स. 6th पीरियड में आपको लैंथेनाइड्स मिलते हैं और 7th पीरियड में आपको एक्टिनॉइड्स मिलते हैं. आप प्लेस्ड इन सेपरेट पैनल्स एट द बॉटम. उसको हम उठा के नीचे रख दिए क्योंकि ऐसा अगर हम उसी में डी ब्लॉक में ही कंटिन्यू करते तो वो बहुत बड़ा हो जाता, पीरियोडिक टेबल सही नहीं रहता. तो हमने नीचे रख दिया तो उसका पीरियोडिक टेबल का डिज़ाइन भी अच्छे से बना हुआ है. सो नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100. तो यहाँ पे परेशानी है, जो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 है पहले तो डिस्कवर हुए नहीं, अब बाद में हो रहे हैं, तो परेशानी. देखते हैं क्यों. द नेमिंग ऑफ द न्यू एलिमेंट्स हैड बीन ट्रेडिशनली द नेमिंग ऑफ द तो आप लोग ध्यान से देखें. द नेमिंग ऑफ द न्यू एलिमेंट्स हैड बीन ट्रेडिशनली द प्रिविलेज ऑफ द डिस्कवरर फॉर डिस्कवरीज.
तो लोग एलिमेंट रख रहे थे, उसके बाद अपना नाम दे रहे थे, अपना नाम उठा के दे रहे थे, तो जो भी वो एलिमेंट, तो उसको पता चलेगा कि इसने डिस्कवर किया था। एंड द सजेस्टेड नेम वॉज ratified by the IUPAC. In recent years, this has led to some controversy. The new elements with the very high atomic numbers are so unstable that only one minute quantity, sometimes only a few atoms of them, are obtained. The synthesis and characterization therefore require highly sophisticated, costly equipments and laboratory. Such work is carried out with competitive spirit only in some laboratories in the world. Scientists, before collecting the reliable data on the new element, at times get tempted to claim for its discovery कि हमने डिस्कवर किया यही कर रहे थे. तो फॉर एग्जाम्पल बोथ अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट क्लेम्ड क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ 104th एलिमेंट. अब बताइए 104th एलिमेंट क्या होता है? रुथरफोर्डियम. ठीक है, द अमेरिकन्स नेम दी रुथरफोर्डियम, अमेरिका की चली रुथरफोर्डियम. सोवियत उसने नाम दे दिया कुरकैटोवियम. तो वैसे भी नाम भी थोड़ा टफ लग रहा है, कुरकैटोवियम, तो अमेरिका का साथ लेके रुथरफोर्डियम रख दिया. तो अवॉइड सच प्रॉब्लम द IUPAC ने किसी का साथ नहीं दिया. द IUPAC हैज़ मेड रिकमेंडेशन दैट अंटिल अ न्यू एलिमेंट्स डिस्कवरी इज प्रूव्ड कि हाँ आपने किया है या तुमने किया है, एंड इट्स नेम इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, अ सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर बी डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एटॉमिक नंबर. किसी का नाम नहीं लेंगे, एटॉमिक नंबर का नाम ले लेंगे. और द एलिमेंट यूजिंग द न्यूमेरिकल रूट्स फॉर 0 and 1 to 9. They are shown in table 3.4. इसको याद करना है. The roots are put together in order of digits which make up the atomic number and EM is added at the end. आपको EM डालना है, ऐड करना है. The IUPAC names for elements with Z and above Z above 100 are shown. तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, अमेरिकन और सोवियत निकल जाए, इसलिए आज हमें ये पढ़ना पड़ रहा है. सो लास्ट में रुथरफोर्डियम पता चला, तो रुथरफोर्डियम उसका नाम रख दिया गया. अब नोशन ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर देखते हैं. तो डिजिट 0 है, नेम उसका नील जाएगा. 0 मीन्स नील एब्रीवेशन N. 1 का हम अन बोलेंगे, 1 अन यू. 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हम सेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन. तो 9 को क्या बोलेंगे? N बोलेंगे, ENN. तो चलो इसका नाम देते हैं. 101 एलिमेंट का क्या होगा? तो आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखें. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है. तो 101 एलिमेंट, 101 एलिमेंट. तो 101 1 के लिए हम यूज़ कर रहे थे क्या? अन. 1 अन. 0 के लिए नील और फिर अन. तो अन नील अन. तो हम फर्स्ट लेटर लेके उसका सिंबल दे देंगे UNU. पूरा नाम देना है अन नील अन, EM लगा दो लास्ट में, EM IUM EM. सो अन UNU. असली में इसका नाम क्या हुआ? मेंडलीवियम. मेंडलीव को दे दिया. मेंडलीव ने बहुत सारा पीरियोडिक टेबल में कंट्रीब्यूशन किया, तो उनका एक फ़ैन था जिसने 101 डिस्कवर किया, तो उसका नाम रख दिया मेंडलीवियम. क्या रख दें? तो मेंडलीव के बहुत फ़ैन थे. मेंडलीवियम, MD इसका सिंबल है, मेंडलीवियम. तो 101 नंबर 1 कौन है? मेंडलीवियम. 102 इसको हम बोलेंगे अन, इसको नील, इसको बाय, लास्ट में EM लगाना है, तो अन नील बाई EM. तो इसका सिंबल हो जाएगा UNB. इसका नाम, असली नाम क्या है? नोबिलियम. नोबल है, ये नोबल है, लेकिन मेंडलीवियम के बाद है नोबिलियम. अब 103 के बारे में बात करते हैं. तो एक और बात याद रखना है कि जो 100, 101, 102, 103 है, ये 103 तक आपको ये एक्टिनॉइड्स में मिलेंगे. 103 के बाद 104, 105, 106, 107, ये 118 तक आपको नॉर्मल रेगुलर पीरियोडिक टेबल में DNP ब्लॉक में मिल जाएंगे, है ना. तो ये जो 104 है, 104, तो 104 क्या है? 103 कर रहे थे. ओके, अन नील ट्राई EM, अनिल ट्राई EM.
तो UNT। इसका असली नाम क्या है? लॉरेंशियम। लॉरेंशियम लॉरेंशियम। तो आपको बट्टी मानना पड़ेगा लॉरेंशियम, मतलब आपको रट्टा मानना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। 101 नंबर 1 मेंडेलिवियम, फिर मेंडेलिवियम को नंबर 2 नोबेल प्राइज़ मिला। तीसरी बात लॉरेंशियम, लॉयर थे वो। चौथी बात रुथरफोर्डियम, लॉयर का नाम क्या था? रुथरफोर्डियम। रुथरफोर्डियम रुथरफोर्डियम अननिलक्वाडियम, so UNQ, right? 104 रुथरफोर्डियम। 105 डबनियम, 105 डबनियम, डबनियम डबनियम डबनियम। 106 सीबोरियम, 107 बोरियम, 108 हैसियम, 109 मिटनीरियम, 110 डामस्टेडियम, 111 रोएंटजीनियम, 112 कॉपरनीसियम, 113 निहोनियम, 114 फ्लेरोवियम, 115 मॉस्कोवियम, 116 लीवरमोरियम, 117 टेनिसाइन, 118 ऊगैनिसन। तो ये आपको कैसे भी दिन रात करके याद करना ही होगा। तो ये याद करने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी, इसको नेग्लेक्ट मत करना, 2020 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन दे चुके हैं। एक बात पीरियोडिक टेबल में बताना चाहूँगी कि जो आपका एक्टिनॉइड्स हैं वो सीरियम से स्टार्ट होके लुटीशियम में ख़त्म होंगे। तो आपको सीरिया को लूटना है, मतलब सीरियम से एक्टिनॉइड स्टार्ट हुए, लुटीशियम में एंड हुए। तो इसका ट्रिक अगर आपको चाहिए मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूँगी, और इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार लिख देना है कि येस वी वांट ट्रिक टू रिमेंबर द पीरियोडिक टेबल, to remember the actinoids, lanthanoids, to remember D block, F block, P block, S block, पूरा periodic table की ट्रिक्स। सो ये भी आपको याद रखना है। से पन्नद पमसम यू गॉट तुम डाही अब तुम यबलू एंड थोपॉन एफ यू एम कैम बेकेफ एस फम मैडनोलॉय। सो आपको ये ट्रिक्स याद रखना है। ये ट्रिक्स सुनने में बड़े अजीब लग रहे होंगे, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए और इसको 3-4 बार याद कर लिया तो के दिमाग में बैठ जाएंगे। सो से पन्नद पमसम यू गॉट तब डाई हो एड तुम यबलू थोपॉन नेफ्यू एम कैम बेकेफ एस फम मैडनोलॉय। से 14 एलिमेंट्स हैं, सीरियम से शुरू होंगे। सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 58। ये कैसे याद रखेंगे? सीरियम और ये क्या है? लुटीशियम का कितना है? 71। लुटीशियम का कितना है? 71। लॉरेंशियम का 103। थोरियम 90। थोरियम आपको याद रखना है 90 एंड लॉरेंशियम याद रखना है कितना है? 103। तो 14 एलिमेंट्स। तो अगर 58 याद है, मान लेते आपको 58 याद है सीरियम, 58 अगर आपको याद है तो 58 से 14 एलिमेंट्स नहीं 13 एलिमेंट्स प्लस कर दो, कितना होगा? 13। 1 and 5 + 1 6 7 71। थोरियम 90 याद रख लिया तो 103 39 करके, तो इस तरह हो जाएगा। तो अगर आप याद रख लो तो आपको ये एडिशन का झेल नहीं होगा एंड यू कैन डू इट फास्ट। तो आपको 101 नंबर 1 कौन है? मेंडेलिवियम को क्या बोला? नोबेल प्राइज़। 102 मेंडेलिवियम को क्या बोला? नोबेल प्राइज़। लॉरेंशियम, रुथरफोर्डियम, डबनियम, सीबोरियम, बोरियम, हैसियम, मिटनीरियम, डामस्टेडियम, रोएंटजीनियम, कॉपरनीशियम, निहोनियम, फ्लेरोवियम, मॉस्कोवियम,
लिवरमोरियम, टेनिसाइन एंड उगैनासन। एक और बात, अगर आपको डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किसमें 3D सीरीज़ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन कंपार्ट्स में डी ब्लॉक सीरीज़ के इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना मस्ट है। तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए मेरे पास बहुत सिंपल ट्रिक होगा। ऐसे आप, अगर मैं पूछूँ ठीक है जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो आप एटॉमिक नंबर देख के बोल दोगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। कैसे, जिंक 30 तो 3D10 4s2, स्कैंडियम 21 3D2 4s1। ऐसा है क्या, 3D1 4s2? मैं आपको चेक कर रही थी, लेकिन आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, लास्ट का ही पूछ रहे हैं। कॉपर एटॉमिक वेट 29, 3D10 4s1। ऐसे झटपट बोल देना है आपको, सिर्फ एटॉमिक नंबर देख के। क्रोमियम का बताओ, 24, 3D5 4s1। मैंगनीज 3D5 4s2। तो ऐसी याद होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत अच्छे से ट्रिक है, आपको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, वो भी आपको ट्रिक से याद करवा देंगे। इफ़ यू वांट राइट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में नीचे लिखोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस याद करने की ट्रिक चाहिए। अगर 10 कमेंट्स भी आते हैं तो आई विल पुट अ वीडियो सून। सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, बहुत बातें हो गई, अब हम ब्रेक ख़त्म करते हैं और ये देखते हैं कि नेक्स्ट हम देखते हैं कि thus the new element first gets a temporary name with symbol consisting of 3 letters. Later permanent name and symbol are given by a vote of IUPAC representatives from each country. जैसे कि अभी एक नाम था अमेरिका और सोवियत वाला में हो गया था, रुदरफोर्डियम प्रोनाउंस करना आसान है, वही कुरकैटोवियम प्रोनाउंस करना डिफिकल्ट। तो वोटिंग होती है यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। द परमानेंट नेम माइट रिफ्लेक्ट द कंट्री और स्टेट ऑफ द कंट्री in which the element was discovered or pay tribute to notable scientists जैसे मेंडलीफ को, सीबोरियम, बोर को। तो बोरियम कौन सा है, 107। बोर को दिया गया 107 पोजीशन। सीबोरियम 106 सीबोरियम। 108 हैसियम 108 हैसियम। 118 ऑर्गेनिसन कैसे प्रोनाउंस करना है कर लीजिए, लेकिन अच्छे से याद होना चाहिए कि क्या है 118 एलिमेंट। सो लेटर परमानेंट नेम वोटिंग के हिसाब से की गई, इन विच द एलिमेंट वॉज डिस्कवर्ड, एट्रीब्यूट साइंटिस्ट को दे दिया। एज ऑफ नाउ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 118 हैव बीन डिस्कवर्ड। ऑफिशियल नेम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय यूपीएससी। सो अभी तो सारे नेम्स मिल चुके हैं, तो आपको फिर भी ये नीट वाले बूढ़े हैं। सो दे आर आस्किंग द like trivial names. Now let's talk about which would be the IUPAC name of the symbol of the element with atomic number 120. अब एक एलिमेंट सपोज मैंने डिस्कवर किया एक एलिमेंट, और तुम्हें बोल रहे कि तुमने भी डिस्कवर किया है। अब एक प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? जब तक एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, तब तक हम एक नाम मानेंगे। वो नाम होगा 120 एलिमेंट, जिससे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये 120 एलिमेंट। तो इसको हम बोलेंगे अनबाइनिलियम। सो ये हुआ, और उसका क्या होगा, सिंबल UBN 120, राइट? 1 का क्या है, अन बाई BM, एंड आपको बाई BM, और 0 का नील, और लास्ट में EM। तो ये हो गया है ना, तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल,
तो ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया, देखो कितना आसानी से करिए। अगर आप खुद से करते तो शायद इतना अच्छे से नहीं होता। और ट्रिक्स भी हमने पिच ब्लेंड का याद रखिए कि आपको पीछे हटना है यूरेनियम को देख के। और यूरेनियम में क्या क्या है, पिच ब्लेंड में क्या क्या है, पीपीपी, प्लूटोनियम, नेप्टूनियम, प्रोटैक्टीनियम, एक्टीनियम, एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल्स, एक्टीनियम यूरेनियम के साथ रह सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं तो इन द प्रीसीडिंग यूनिट वी हैव लर्नड दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेट ऑफ 4 quantum numbers and the principal quantum number n defines the main energy level known as a shell. We have also studied about the filling of electrons into different subshells, also referred to as orbitals, sp, d, f in an atom. So जैसे कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पिछला चैप्टर था उसमें पढ़ा कि 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया तो आप जाके वो ज़रूर एग्जैक्टली सुन लें, देख लें, समझ लें कॉन्सेप्ट। सो डिफाइंस द मेन एनर्जी, जो एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो मेन एनर्जी को डिफाइन करता है, उसको हम शेल लेवल भी बोलते हैं। वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट सब शेल्स, रिफर्ड टू एज ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में भी हमने देखा एस पी डी एफ इन एन एटम। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एन at orbital of an atom उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एंड एलिमेंट्स लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल रिफ्लेक्ट्स द क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट ऑर्बिटल फील्ड। In this section, we'll observe a direct connection between the electronic configuration of the elements in the long form of the periodic table. पिछले चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं SPDF। अब इस पर्टिकुलर्स में देखें कि कौन डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। कुछ नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी एक बार देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इन पीरियड्स। द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ n। तो वैल्यू ऑफ n कौन रिप्रेजेंट करता है, पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू ऑफ n। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पीरियड आपका n, जैसे कि हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, जैसे कि मेरे पास 118 है ऊगैनसन। सो 118 जो ऊगैनसन है उसमें अगर देखें तो लास्ट में जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 1 की वैल्यू कितनी है, वो कितनी है वो अभी तो पता डिस्कवर नहीं हुआ है। लेकिन अगर सपोज मेरे पास रेडॉन है तो रेडॉन का 6:6p6, तो 6 देख के हम बोल सकते हैं कि इट बिलोंग्स टू 6th पीरियड। सिमिलरली जिंक का सपोज 3d10 4s1, तो 3d देख के 3d10 4s2 4 देख के आप क्या बोल सकते हो कि 4 जो है 4th पीरियड को जिंक बिलोंग करता है। तो इस तरह से n वैल्यू देख के आप क्या बोल सकते हैं, पीरियड नंबर। सिमिलरली जैसे बेरिलियम 2s2 है तो 2 क्या है उसका पीरियड नंबर। सिमिलरली सिलिकॉन का 3s2 3p2। अब 3 देख के आप क्या बोल सकते हो कि ये 3rd पीरियड को बिलोंग करता है। पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल वाले, उसको मेंडलीव ने क्या सीरीज़ भी बोला था। जिससे कि आप सेप्टिमोनी SB और एंटीमोनी का देखें तो 5s2 5p3, तो 5 क्या दिख रहा है आपको, दैट इज़ पीरियड नंबर, तो 5th पीरियड को बिलोंग करता है। सपोज आपके सामने एक क्वेश्चन है दैट इज़ 3s2 3p6, बताइए कौन से पीरियड का है, दैट इज़ 3rd पीरियड, सिंपल। सिमिलरली अगर आपको 5d4 6s2 दे दिया, 5d4 6s2, तो ये किसको बिलोंग करता है, 6th पीरियड। सिमिलरली 5d10 6s1, तो ये 6s1 6 बिलोंग्स टू व्हाट, 6th पीरियड। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। और एक पूछते हैं लास्ट क्वेश्चन, 4f5d0 6s2, ये किसको बिलोंग करता है, कौन से पीरियड को, 6th पीरियड को। सिमिलरली 5f4 61 7s2, ये किसको बिलोंग करता है, लास्ट में मैंने 7s2 बोला तो 7th पीरियड को बिलोंग करता है। तो n वैल्यू आपको पीरियोडिक नंबर देता है, पीरियोडिक पीरियड नंबर देता है। इन अदर वर्ड्स सक्सेसिव पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल इज एसोसिएटेड विद फिलिंग ऑफ द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल and is equal to 1 and is equal to 2 etc. It can be readily seen that the numbers of elements in each period is twice the numbers of atomic orbitals. So in other words, successive period in the periodic table is associated with the filling of the
next higher principal energy level, n is equal to 1, n is equal to 2, etc. So the period indicates the value of n for the outermost or valence shell. बैलेंस शेल का एन वैल्यू आपको बताना है, वो उससे आपको पीरियड नंबर मिलेंगे. अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं जिसको समझ नहीं आ रहा है कि द सक्सेसिव पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल एसोसिएटेड विद द फिलिंग ऑफ द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इज इक्वल टू 1, 2 एक्सेट्रा. It can be readily seen that the number of elements in each period is twice the number of atomic orbitals. Number of elements in each period is twice the number of atomic orbitals. So number of elements in each period is twice the number of atomic orbitals. Number of elements in each period. Number of elements in each period. Number of elements in each period is twice that the number of elements. See, each period is twice the number of atomic orbitals available in the energy level that is being filled. The first period n is equal to 1 starts with the filling of the lowest energy level 1s and therefore has two elements hydrogen 1s1 and helium 1s2. देखो क्या रिलेशन है, हम क्यों बोल रहे कि अगर n की वैल्यू पीरियड नंबर क्यों देता है. That the number of elements in the each period is twice the number of atomic orbitals. जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उतने, राइट, जैसे अवेलेबल इन द energy level that is being filled. The first period n is equal to 1 starts with filling of the lowest level 1s, therefore has two elements hydrogen 1s1 and helium 1s2. When the first shell k is completed, the second period n is equal to 2 starts with lithium and third electron enters the 2s orbital. The next, so the second period अगर देखें n की वैल्यू 2 है, starts with the lithium and third electron enters into the 2s orbital. The next element beryllium has so 2s, right, next element beryllium has 4 electrons and has the electron configuration 1s2 2s2. Starting from the next element boron, now starting with the next element, so I think video बहुत लंबी हो गई है. So starting with the next, from the next element boron, the 2p orbitals are filled with electrons when the L shell is completed at neon. L shell complete हो गया 2s to 2p6. अब देखिए 2s to 2p6 2s वाले सब शेल में 2 वाले शेल में अगर आप देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए 8 एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड में आ रहे हैं. जस्ट देयर आर 8 एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड. तो ये एल शेल हुआ, राइट. द थर्ड पीरियड n is equal to 3 begins at sodium and the added electron enters a 3s orbital. अब 3s में कितने आ सकते हैं, देखो, successive filling of 3s 3p orbitals give rise to the third period of 8 elements from sodium to argon. The fourth period is equal to 4 starts at potassium and the added electrons fill up to 4s orbitals. Now we may note that the 4p orbital is filling up 3d orbitals. 4p कब फिल होगा, 3d फिल करते करते 4p फिल होगा, है ना. 3d फिल करते करते 4p फिल होगा. The 3d orbitals become scientifically favorable and we come across so-called 3d transition series of elements. This starts from scandium Z equal to 21, which has the electronic configuration below 3d1 4s2. The 3d orbitals are filled at zinc Z is equal to 30 with electronic configuration 3d10 4s2. The fourth period ends at krypton with the filling up of the 4p orbitals. Altogether, we have 18 elements in the fourth period. 18 एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हुए, फोर्थ पीरियड. तो फोर्थ पीरियड से आपको 18 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि उसमें जो 3D आ रहे हैं वो 3D में आपको फिल करके ही आप फोर्थ पीरियड में जा सकते हो, राइट. तो इसलिए जो आपका कौन सा पीरियड बोला, फोर्थ पीरियड, जो आपका फोर्थ पीरियड है
जब आपका फोर्थ पीरियड है उसमें क्या आता है, जब आपका फोर्थ पीरियड है उसमें क्या आता है, जब आपका फोर्थ पीरियड है उसमें क्या आता है, 18 एलिमेंट्स आते हैं, 18 एलिमेंट्स है ना, 18 एलिमेंट्स आते हैं, 18 elements. Beginning with rubidium is similar to the fourth period and contains a 4D transition series starting with at yttrium z is equal to 39. The period ends at xenon with the filling up of 5 p orbitals. The sixth period ends equal to 6 contain 32 elements and successive electrons enter 6s 4f 5d 5d 6p orbitals 6p orbitals in the order filling up of the 4f orbitals with cerium z equal to 50 ends up with lutetium z equal to 71 to have 4f in a transition series which is called lanthanoid series. 7th period n is equal to 7 is similar to 6th period with successive filling up of 7s 5f 67p orbitals include most of the man-made radioactive elements. This period will end at the element with atomic number 118 which belong to the noble gas family, filling up the 5f orbitals after actinium z equal to 89 gives 5f in a transition series known as the actinoid series. The 4f and 5f in a transition series of elements are placed separately in the periodic table to maintain its structure and to preserve the देखो इसका स्ट्रक्चर का पढ़ा इसको preserve the principle of classification by keeping elements with similar properties in a single column. सिंगल कॉलम बोला था ना, वर्टिकल लाइन में होना चाहिए. How would you justify the presence of 18 elements in the fifth period in the periodic table? N is equal to 5 है, L is equal to 0, 1, 2, 3. The order in which the energy of the available orbitals, the order in which the energy of the available orbitals 4d 5s 5p increases is 5s कम है 4d से, कम है 5p से. The total number of orbitals available are 9. The maximum number of electrons that can be accommodated is 18, and therefore 18 elements are there in the fifth period. Total number of orbitals available are 9. Maximum number of electrons ठीक है. 5s 4d 5p, 5s में एक ऑर्बिटल, 4d में 5 ऑर्बिटल्स पूरे में, और 5p में 3 ऑर्बिटल्स. टोटल 1 + 5 6 + 3 9 ऑर्बिटल्स हैं. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 ऑर्बिटल्स में कितने, 18. ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे. तो आई थिंक ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, तो आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. यहाँ पे हमें पूरा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करना है. बहुत से ट्रेंड्स बचे हैं, तो हम क्या करेंगे कि पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम बाकी का करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and consider watching my all videos. Thank you so much.